Okay, good morning, all of you. Hope all of you are good, healthy, and happy. So let's begin the class. In the last class, we started the atomic structure. In the atomic structure, you have learned the in atomic radius. We started the atomic radius. In the atomic radius, you learned what is actually the atomic radius, what are the different types of atomic radius, isn't it? And you have learned how the atomic radius changes in the group and period, isn't it? You have learned in a group from top to bottom, the atomic radius increases because the differentiating electron enters into the new orbit. And you have learned in a period from left to right, the atomic radius decreases because the differentiating electron enters into the same orbit. So effective nuclear charge increases, so the atomic radius decreases. And you have learned the atomic radius decreases till halogen, then increases to the inert gases. That's the most important point we discussed. Now let's see the lanthanide contraction. So here, lanthanide contraction, you know lanthanides and actinides. So lanthanides are the series of elements. It belongs to a period, isn't it? So when we say the period means the atomic radius decreases in a period from left to right. But here in case of lanthanides, this decrease, it is the steady decrease in the size of lanthanides due to pore shielding effect. Due to pore shielding effect of f orbitals is known as lanthanide contraction. तो lanthanide contraction क्या है? अगर हम जब एक पीरियड के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा. लेकिन लैंथेनाइड्स में वो डिक्रीज ऑब्जर्व नहीं हो रहा अपने को. अगर आप एटॉमिक साइज लेंगे तो वो स्लोली, बिल्कुल स्लोली जो ना वो डिक्रीज होगा. मतलब साइजेस लैंथेनाइड्स के ऑलमोस्ट सेम रहेंगे. आ रहा समझ में आप लोगों को? सो दिस स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनाइड्स. तो इसकी वजह क्या है? पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स. एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पोर रहेगा. ठीक है. अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है? The shielding effect is nothing but, for example, let's say it is the nucleus. These are the orbits, first, second, third, and fourth, so on. Let's say the electron is here. Electron last में समझेंगे अपन. ठीक है. तो जब electron is last, electrons are present even in the inner orbits also. Electrons अंदर भी तो है. अब ये जो electron last में है, ये nucleus का attraction वहां पर पहुंचे तक थोड़ा सा weak हो जाएगा, क्योंकि ये जो electrons in between the last electron and the nucleus, these electrons decreases the attraction of nucleus over valence electrons. तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को थोड़ा सा कम कर देते हैं वो लोग, isn't it? तो मतलब क्या है? जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, those inner electrons are acting as the screens. The inner electrons acting as the screens. Because of this, the attraction of nucleus over valence electrons decreases, which is known as the screening effect या फिर जो ना shielding effect. हम उसको screening effect भी बोलेंगे या फिर shielding effect भी बोलेंगे. ठीक है. So yeah, this shielding effect or shielding effect is poor in case of lanthanides. That's why the decrease in the size of lanthanides is low, is known as the lanthanide contraction. Because of this lanthanide contraction, let's see the consequences. Here, the consequences of lanthanide contraction, the result of lanthanide contraction is, if you take the 4D and 5D series, 4D and 5D series elements have almost same size and similar properties. तो यहां पर ये लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज में जो एलिमेंट्स है उनके साइजेस सिमिलर रहेंगे और उनके प्रॉपर्टीज भी जो है सिमिलर रहेंगे. और अब कुछ एलिमेंट्स ले लिए, जैसे कि जो है जिरकोनियम एंड हॉफनियम, ठीक है, नियोबियम and tantalum and molybdenum
एंड टंगस्टन, ठीक है। सो इसके प्रॉपर्टीज, सो प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिए अपन जिरकोनियम एंड हाफनियम, नियोबियम, टैंटलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी क्या रहते हैं, सिमिलर सिमिलर रहेंगे। क्यों? कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नाउ थर्ड वन, इट इज डिफिकल्ट, it is difficult to separate, it is difficult to separate lanthanides from each other, from each other। अब क्योंकि यहाँ पर जो ना प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, उनके साइजेस भी जो ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो अपने को जो ना इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द lanthanides from each other। so it is about the lanthanide contraction, the important topic। if you take the IPE part, IPE में, IPE मतलब इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन, जो आप लोग फर्स्ट ईयर का जो थ्योरी एग्जाम लिखेंगे ना, वो एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अपने कॉम्पिटेटिव पार्टी, कॉम्पिटेटिव मतलब IIT के लिए जो ना ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, कॉन्सिक्वेंसेस अपने को इंपॉर्टेंट है। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अब देखिए, सो आई रिपीट दिस अगेन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा, लैंथेनाइट्स को ने एक सिक्स्थ पीरियड में से अपन कुछ एलिमेंट्स को जो है ना बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल में लिया अपन, ठीक है। क्यों लिया अपन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर हो रहा, सो एंटी पेनल्टीमेट शेल में एंटर हो रहा, ठीक है। तो अपन क्या करें उसको, वो सिक्स पीरियड में से कुछ एलिमेंट्स को अपन बाहर ले लिए, तो मतलब ये भी एक पीरियड ऑफ एलिमेंट्स लैंथेनाइट्स। जब हम एक पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता ना, लेकिन लैंथेनाइट्स में ऐसा डिक्रीज, डिक्रीज मतलब ऐसी होगा ना साइज, ठीक है, ऐसा साइज जो ना डिक्रीज होगा, जनरली पीरियड बोले तो ऐसा डिक्रीज होना, लेकिन इन केस ऑफ लैंथेनाइट्स द साइजेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज रहेगा यहाँ पर, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। वजह क्या है? इट इज ड्यू टू द पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को जो है ना कम करेंगे, किसके ऊपर? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, ठीक है। उसको हम बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। वो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, because it is low for the f orbitals, that's why here the atomic size decrease is low or slow, which is known as lanthanide contraction। अभी लॉन्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका रिजल्ट क्या है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से? ये जो 4D और 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है, 4D 5D सीरीज कौन है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो ये दो सीरीज के एलिमेंट्स के जो साइजेस और प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगे, सिमिलर रहने की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द लैंथेनाइड्स फ्रॉम ईच अदर। और कुछ एलिमेंट्स अगर हम स्पेसिफाई करें, जैसे कि जिरकोनियम, जेडार एक एलिमेंट है जिरकोनियम एंड हाफनियम, ठीक है, ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स। वैसे नियोबियम एंड टैंटलम पेयर ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये जो एलिमेंट्स है इनके प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस। ओके, नाउ आफ्टर दिस the next most important part is the ionic radius. So let's see about the ionic radius.
ionic radius, the most important topic. I say this one as the most important topic for the competitive part, IIT JEE के लिए. Now let's see about the ionic radius. Now let's say it is the X is some neutral atom. Neutral ही है ना ये, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल एटम है. अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है. सो हियर X को जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन. व्हेन यू ऐड द इलेक्ट्रॉन वी गेट द X माइनस. आ रहा समझ में? या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, okay, no problem. So to the X, when you add electron, you are adding the negative charge. When you add the negative charge, it becomes the X minus. ठीक है. अब X माइनस को हम क्या कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं. जब नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं तो ये -1 जाके -2 हो जाएगा ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है ना यहाँ पर. सो वो नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, सो यू गेट द X -2. ठीक है. So to this neutral, when you add negative charge, X changes to the X minus. To this X minus, when you add another electron, minus will change to the -2. ठीक है. Now what we are doing here, अब ये जो X है, हम ये X से 1 electron निकाल रहे हैं. We are removing 1 electron from X plus X neutral atom. ठीक है. We are removing an electron from the neutral atom. When you remove 1 electron, means you are removing one negative charge. When you remove one negative charge, comparatively one positive charge will be more. तो ये X क्या हो जाएगा? The X will change to the X plus. आ रहा ना समझ में आप लोगों को? X में से क्या कर रहे हैं हम? एक नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली एक वन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर. अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो X प्लस है, इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं. we are removing another electron from this unipositive cation. uni मतलब 1, पॉजिटिव. ठीक है, यूनिपॉजिटिव आयन. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप और एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो और एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. सो वन मोर पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज. सो हियर फ्रॉम दिस विल गेट द X + 2. और समझ में आप लोगों को? हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? हम आयोनिक रेडियस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, मतलब आयन वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव. ठीक है, तो उसका जो ना साइजेस कैसा चेंज हो रहा है वो देख रहे हैं अपन. ठीक है, पहले तो हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे थे. जब इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो बिकम्स X माइनस. व्हेन यू एडेड द इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स X - 2. व्हेन यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन बिकम्स X प्लस. From this X plus, when you remove the electron, becomes X + 2. Actually, what we want to discuss here, we want to compare the sizes of all these ions. Okay, we want to compare this X + 2. We want to compare X plus X, X minus X - 2. इनके sizes हम compare करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब देखिए ये तो न्यूट्रल एटम है. X क्या है? न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है. अब हम क्या करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करें. जब इलेक्ट्रॉन एडेड तो इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द न्यू ऑर्बिट, लेट्स से, तो क्या होगा, साइज तो इंक्रीज होगा. मतलब नेगेटिव चार्ज जब फॉर्म हो रहा तो ये नेगेटिव आयन, मतलब एनायन का साइज इज मोर देन द न्यूट्रल एटम, बिकॉज यू एडेड द इलेक्ट्रॉन. लेट्स इट इज सम एटम इज देयर, लेट्स इट इज द न्यूट्रल. अब न्यूट्रल को आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एक न्यू ऑर्बिट में आ रहा है यहाँ पर, तो मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, साइज इंक्रीज हो रहा. दैट्स व्हाई हियर द साइज ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज मोर देन द न्यूट्रल. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. व्हेन यू आर एडिंग अनदर इलेक्ट्रॉन व्हाट हैपेंस, द साइज इंक्रीजेस. मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हैं साइज क्या हो रहा, इंक्रीज होते जा रहा. इजंट इट? अच्छा, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, यू हैव रिमूव्ड द इलेक्ट्रॉन. व्हेन यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, लेट्स से इट इज द न्यूक्लियस, इट्स द ऑर्बिट. ओके, सो यू हैव रिमूव्ड द इलेक्ट्रॉन. आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो क्या हो रहा, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और प्रोटॉन्स नंबर इंक्रीजेस. दैट मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स effectively attracts the electrons. आ रहा समझ में? जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, आप समझो कि जो है ना 12 प्रोटॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स से समझो. ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स में से आप 1 इलेक्ट्रॉन you have removed. When you have removed 1 electron, you are left with the 11 electrons. You are left with the 11 electrons. अब हम कंपेयर करेंगे तो प्रोटॉन्स कितने हैं,
12 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 है, तो कंपैरेटिवली 1 प्रोटॉन ज्यादा है यहाँ पर। अभी जो प्रोटॉन ज्यादा है, द प्रोटॉन्स व्हिच आर मोर, दे इफेक्टिवली अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग सॉरी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा न्यूक्लियस के करीब होंगे, तो ऑटोमेटिकली साइज डिक्रीज हो रहा है वहां पर। दैट्स व्हाई हियर the size of cation is less than neutral atom, and if you remove another electron, then size even decreases. अब अपने को इस सीक्वेंस से क्या मालूम हो रहा? एक सिंपल लॉजिक क्या डेवलप हो रही है यहाँ पर। अगर आप एनायन लेंगे, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है, एनायन का साइज किससे ज्यादा है? न्यूट्रल से ज्यादा है। द साइज ऑफ एनायन इज मोर देन न्यूट्रल एटम, एंड द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम इज मोर देन कैटायन। आ रहा समझ में? anion is more than neutral, neutral is more than cation. अच्छा, इससे what another important information we are getting from this sequence? As the charge on anion increases, यहाँ पर देखिए -1 है और यहाँ पर -2 है। As the charge on anion increases, size increases. जैसा जैसा anion का साइज बढ़ते जा रहा है, आयन का साइज भी इंक्रीज होते जा रहा है। Here, as the charge on cation increases, size decreases. आ रहा समझ में? एनायन का चार्ज बढ़ रहा तो साइज बढ़ रहा, कैटायन का साइज बढ़ रहा तो कैटायन का जो है ना नंबर बढ़ रहा तो साइज डिक्रीज हो रहा। आ रहा समझ में? ओके, अगर आप इसका कुछ एग्जांपल अगर लेंगे, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द हियर द O-2 F- Ne, ओके, हियर इज द Na प्लस Mg2 प्लस। ये पूरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना, 8 + 2 10, 9 + 1 10 10, 11 - 1 10, 12 - 2 10, ठीक है। अभी हम ये सीक्वेंस से अपने को क्या मालूम हो रहा? नेगेटिव इज मोर देन न्यूट्रल, न्यूट्रल इज मोर देन पॉजिटिव। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो जाएगा नेगेटिव पे, साइज इंक्रीज हो जाएगा। मींस -2 इज मोर देन -1, -1 इज मोर देन 0, 0 इज मोर देन +1, +1 size is more than +2. Understood all of you? Most important point, most important topic we discussed so far. Okay, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोई। We are learning different topics daily. We have to learn this. ठीक है, ये डिफरेंट टॉपिक्स नहीं होता, ये पूरे जो है ना हम एक सीक्वेंस से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली हम स्टार्ट क्या किए थे? पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट क्या कंप्लीट करें अपन? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस प्रपोज्ड बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, isn't it? फिर उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। देन वी स्टार्टेड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, एवरी टॉपिक यू हैव टू लर्न, एवरी टॉपिक यू हैव टू लर्न। आ रहा समझ में? Because we are teaching something means that is not out of syllabus, that is within the syllabus, so you have to be perfect in each and every topic, ठीक है? Okay, now the next periodic property, that is the ionization potential or ionization energy, ठीक है, ionization potential or ionization energy. So what actually this ionization potential or ionization energy? Let's say this is a nucleus, so these are the different orbits. Let's say we have the electron here, क्या है वहां पर? इलेक्ट्रॉन है। Now this
electron, you know the electron is negatively charged. Electron is negatively charged. This negatively charged electron is attracted by the positively charged nucleus. तो पॉजिटिव न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा. अब आप क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे हैं. यू वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. जब आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, देन यू हैव टू यूज द एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए यू हैव टू use the energy, isn't it? Because the electron is attracted by the nucleus. You have to use the energy more than that attractive power, isn't it? So this energy which you are using, the energy which you are using to remove the electron, the energy which you are using to remove the electron is known as the ionization energy or ionization potential. So how you can define this one? This is nothing but the minimum energy, the minimum energy required, the minimum energy required to remove electron, to remove electron. Electron remove करने के लिए जो minimum energy चाहिए, ऐसा नहीं हम maximum energy use कर रहे हैं. minimum जितनी electron निकालने के लिए चाहिए अपने को, सिर्फ और सिर्फ उतनी energy. So the minimum energy required to remove electron from neutral isolated gaseous atom. So it is the minimum energy required to remove electron from neutral. Neutral मतलब क्या है, शुरू में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से पहले तो वो न्यूट्रल रहेगा. ठीक है. न्यूट्रल आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब सेपरेटेड. ठीक है, सेपरेटेड, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड गैसेस एटम. तो इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हैं आप बाहर? गैसेस एटम से निकाल रहे हैं. आप लिक्विड स्टेट का जो एटम है उससे नहीं निकाल रहे हैं, सॉलिड स्टेट का जो उससे नहीं निकाल रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन. सिर्फ और सिर्फ गैसेस एटम से जो शुरू में न्यूट्रल है उससे एक लास्ट इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हैं. तो निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम is known as the ionization energy. Here the units of this ionization energy are electron volts per atom or kilocalories per mole या फिर जो ना किलो जॉल्स पर mole. Here if you take the 1 electron volts per atom is equals to 23.06 kilocalories per mole. This is equals to 96.45 kilojoules per mole. This is equals to 1.602 into 10 power minus 19 joules per atom. ठीक है, तो ये जो ना कुछ कन्वर्शन से दिस यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. सो यहाँ पर यूनिट्स क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम. ठीक है. आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या है? किलो कैलोरीज पर मोल, किलो जॉल्स पर मोल या फिर जो ना ओके किलो जॉल्स पर मोल. अब यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं अपन. सो 1 electron volts per atom is equals to 23.06 kilocalories per mole. This is equals to 96.45 kilojoules per mole. It is the 96.45 kilojoules per mole. This is equals to 1.602 into 10 power minus 19 joules per atom. अच्छा, अब देखिए एक्चुअली कर रहे क्या हम यहाँ पर. समझो कि X जो है ना एक एटम है. कौन सा एटम है ये? यहां पर देखिए. सो हियर X इज, so it is the neutral isolated gaseous atom. तो यहां पर ये न्यूट्रल है और ये एक गैसेस एटम है. ठीक है. अब हम क्या करना चाह रहे हैं? X से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाह रहे हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जब यू वांट टू रिमूव यू हैव टू यूज एनर्जी. क्या करना, क्या करेंगे आप? एनर्जी यूज करेंगे. अच्छा, ये जो एनर्जी यूज कर रहे हैं ये एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे. और समझ में, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आप एनर्जी यूज कर रहे हैं. दैट एनर्जी इज द आयोनाइजेशन एनर्जी. व्हेन यू यूज द आयोनाइजेशन एनर्जी व्हाट हैपेंस? इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड. इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा. जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा तो एक्स कैसा चेंज हो जाएगा? एक्स चेंजेस टू द एक्स प्लस. आ रहा समझ में? एक्स चेंजेस टू द एक्स प्लस. अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो एक्स प्लस है दोबारा हम ले रहे हैं यहां पर. So X plus, it is in the gaseous state.
इसे हम दोबारा और एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, वी वांट टू रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन, so the energy required is known as ionization energy, isn't it? The energy required is known as ionization energy. So here when you use this one, another electron is removed, another electron is removed, then what happens? This x place changes to the x plus 2, x changes, x place changes to the x plus 2. अब देखिए यहां पर फर्स्ट टाइम जब आप एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, द एनर्जी विच इज यूज्ड here you have removed the one electron, first electron, this energy which you have used is known as the first ionization energy or ionization energy 1, ठीक है? By using the first ionization energy you have removed one electron. Now from this you are removing another electron, you are removing another electron, so the second time the energy which you are using, the second time the energy which you are using is the second ionization energy or ionization energy 2. आ रहा समझ में आप लोगों को? So यहाँ पर one electron removed, here another electron is removed, so for one electron energy is ionization energy 1, for the second electron which we are removing is the ionization energy 2. अब ये दो energies को अगर हम compare करेंगे, if you compare these two energies, then the ionization energy 2 is greater than ionization energy 1. Always the second ionization energy will be more than first ionization energy. इसका reason क्या है? The reason is when you remove one electron, जब आप एक electron बाहर निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है वहां पर? Number of electrons comparatively decreases, प्रोटॉन्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़े कम हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको कुछ ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ेगा. अब फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए समझो कि जो ना 12 प्रोटॉन्स और जो ना 12 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? आप वन इलेक्ट्रॉन जो है ना रिमूव करना चाह रहे हैं. व्हेन यू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, सो यू आर लेफ्ट विद द 12 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स कम है और प्रोटॉन्स ज्यादा है यहाँ पर, तो ये जो प्रोटॉन्स ज्यादा है which is more in number, that effectively attracts these less number of electrons. That's why here you need more energy to remove the electron, क्योंकि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस से ज्यादा है, so those more number of positive charges attracts the less number of negative electrons. That's why you need more energy to remove the electron. That's what the reason second ionization energy is more than first ionization energy. अच्छा अब देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल आप ये जो x प्लस 2 फॉर्म हो रहा, उसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो कौन सी एनर्जी यूज होंगी वहां पर? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. अगर ऐसा हुआ, then in that case the third ionization energy is greater than second ionization energy. जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, आपको the energy which is needed is more. That's why here the third ionization energy is greater than second than first. The most important topic we discussed. Still the explanation is there.
Okay, now let's continue this one. Let's the factors which affect the ionization potential. Okay, so you have learnt that third ionization energy is more than second, second is more than one. Okay, now let's see the factors affecting IE. IE is nothing but ionization energy. Factors affecting ionization energy. The first one is the ionization energy. Ionization energy is inversely proportional to the AR. What is AR? Atomic radius. So ionization energy is inversely proportional to atomic radius. मतलब क्या है इसका? अब फॉर एग्जाम्पल ये जो ना न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट ऑर्बिट्स है और लेट्स से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन। मतलब क्या है? अगर साइज इज लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, साइज इज लेस एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक लार्ज एटम है समझो और एक स्मॉल एटम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। पहले अगर आप स्मॉल एटम लेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है? लेस है। डिस्टेंस इज लेस। डिस्टेंस इज लेस मींस न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डिस्टेंस कम है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। Why it is difficult to remove the electron? Because the nucleus attracts the electron strongly. That's why if you want to remove, you have to use more energy. You have to use more energy. तो यहाँ पर small atom में आपको large energy use हो रही, तो small atom में large energy use हो रही। So inverse relation, या फिर if you take this large size atom, here the distance is more. लार्ज एटम में क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है। किसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस इज मोर। या डिस्टेंस इज मोर मींस अट्रैक्शन इज लेस। जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। तो यहां से अपने को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है। इजी है मतलब यू हैव टू यूज लेस एनर्जी। You have to use less energy to remove electron from large atom because distance is more, attraction is less. Here more atom means large atom, less energy. So here if large size is large, then energy required is less. That's why it is a inverse relation. Achha, now the second one is ionization energy is directly proportional to nuclear charge. Directly proportional to nuclear charge. अब ये न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ते जाएगा, मतलब जैसे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली। तो जब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब आपको एनर्जी ज्यादा यूज करना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी यू हैव टू यूज। मींस एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, the ionization energy also increases. So here more nuclear charge, more ionization, more energy is needed, so more ionization energy. So relation here is a direct relation. Next, third one is the ionization energy is directly proportional to charge on cation. Charge on cation. अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ionization energy is directly proportional to the चार्ज ऑन कैटन। मतलब क्या है? जैसे जैसे कैटन का चार्ज बढ़ते जाएगा, अपने को उतनी ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। क्यों? कि यहाँ पर कैटन का मतलब क्या है? ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ही तो कैटन फॉर्म होगा। बात आ रही समझ में आप लोगों को? जब इलेक्ट्रॉन से
हाँ, जब एटम से हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो कैटायन फॉर्म हो रहा, ठीक है, मतलब ऑलरेडी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, मींस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, मींस नेगेटिव चार्जेस आर लेस, when negative charges are less, comparatively positive charges are more, so those more number of positive charges effectively attracts the less number of electrons. That's why you need more energy to remove the electron. That's what the reason ionization energy is directly proportional to the charge on cation. जैसे जैसे cation का charge बढ़ते जाएगा अपने को उतनी ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ेगा. Next, here the ionization energy is inversely proportional to charge on anion. अब ये anion कैसा फॉर्म हो रहा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से anion फॉर्म हो रहा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से. मतलब क्या है यहाँ पर, anion is there means more electrons are there, more electrons means distance is more from the nucleus, when distance is more means attraction is less, attraction is less means you need to use less energy to remove the electron, you need less energy means ionization energy is less. That's why here more negative charge on ion, then you need less energy, so more less या फिर less more, inverse relation हो गया यहाँ पर, ठीक है. Now after this the next one, ionization energy is inversely proportional to screening or shielding effect, screening और shielding effect. अब ये screening या फिर shielding effect क्या चीज है देखो. So ये अब ये एग्जांपल ले लेंगे अपन. यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर है तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर भी तो रहेंगे, ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर है, the electrons which are present inside, these electrons means the inner electrons decreases the attraction of nucleus over valence electrons. तो ये जो बीच में आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देते, मतलब कम कर देंगे वहां पर. means here these inner electrons decreases the attraction of nucleus over valence electrons. So what happens, as the number of electrons in between increases, attraction decreases, means you need less energy to remove the electron. तो बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आखिरी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन उतना कम होगा, तो आप उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते. मींस आपको यू हैव टू यूज द लेस एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई हियर इट मींस as the screening effect increases, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट. तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा, अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा, आयोनाइजेशन एनर्जी लेस यूज हो रही. तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी कम एनर्जी इज नीडेड, जितनी as the shielding effect decreases you need more energy, you need more ionization energy. Okay, now the next one is ionization energy is directly proportional to penetrating power of orbitals. Ionization energy is directly proportional to penetrating power of orbitals. अब ये penetrating power of orbitals क्या है? अब ये जो ना आप लोगों को मालूम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है. आ रहा समझ में आप लोगों को? अच्छा, अब देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s ऑर्बिटल है, सेकंड में s और p है, थर्ड में sp और d है, फोर्थ में sp d और f. आ रहा समझ में? तो अब ये sp-df में न्यूक्लियस के क्लोज कौन है? ये sp-df में न्यूक्लियस के करीब कौन है? s ऑर्बिटल है. तो मतलब ये जो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस. तो यहां से अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. मतलब इट इज डिफिकल्ट, मींस यू नीड मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस s ऑर्बिटल. वही अगर आप f ऑर्बिटल ले लिए तो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो यहां पर अट्रैक्शन इज लेस. when attraction is less you can easily remove electron by using less energy, means here the ionization energy is less in this case. So less ionization energy, more ionization energy. अच्छा, अब ये penetrating power अगर अपन ले लिए तो s orbital is penetrated inside the atom, so penetration power is more for the s than p than d than f. तो वही है यहाँ पर. अब ये penetrating power of orbitals क्या है? s more than p than d than f. It is the penetrating power of orbitals.
आ रहा है समझ में आप लोगों को? ओके, नाउ आफ्टर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 7th पॉइंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. I'm writing here the ionization energy is more for half filled and completely filled, half filled and completely filled subshells, half filled and completely filled subshells. अगर ऑर्बिटॉल्स जो है ना हाफ फील्ड है या फिर कंप्लीटली फील्ड है तो स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा है, मोर स्टेबिलिटी इज देयर. कहां पर पढ़े ये कॉन्सेप्ट? वी डिस्कस्ड इन द हंट्स रूल, we discussed in the Hund's rule that half filled and completely filled subshells are more stable. तो जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा रहेंगे सबशेल्स की, वहां से अपने को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है. मतलब we need to use more energy to remove the electron from the half filled and the completely filled subshells. That's what I have written here. Ionization energy is more for half filled and completely filled subshells. This particular point is more important compared to others. Each and everything is important, the last one is more important. Okay, चलिए जल्दी कॉपी या फिर स्क्रीनशॉट करिए. यहां पर देखिए कोई पूछ रहे हैं क्या है ये, सर प्लीज सर एक्सप्लेन सम एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक. एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक मतलब आयोनिक रेडियस का शायद आप पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाली टॉपिक तो आयोनिक रेडियस की थी. आयोनिक रेडियस में हम क्या बोल रहे हैं? एनायन का साइज न्यूट्रल से ज्यादा रहेगा, न्यूट्रल का कैटायन से ज्यादा रहेगा. एनायन का क्यों इट इज मोर? क्योंकि एनायन मींस electrons are added, so size increases. So that's why the anion size, negative charged ion का size neutral से ज्यादा रहेगा and neutral size is more than the positive ion. Understood all of you? That's what we discussed. ठीक है, और कोई क्या, और क्या डाउट है यहाँ पर? सेवंथ पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, पहले तो हम फोर्थ पॉइंट ले लेंगे. अब देखो फॉर एग्जांपल ये मैं जो ना फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं यहाँ पर. समझो कि जो ना एक एटम में 8 प्रोटॉन से और 8 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फोर्थ पॉइंट. ठीक है, अब आप क्या करें, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें. समझो तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर कंपेयर करेंगे हम तो प्रोटॉन्स 8 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 है. ठीक है, तो ये जो x है, x 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से, x जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से x 2 माइनस हो गया यहाँ पर, तो ये एनायन है. ठीक है, अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मींस हियर द डिस्टेंस इज मोर. व्हेन द डिस्टेंस इज मोर, here when the distance is more, attraction is less. That's why you can remove the electron easily by using the less energy. That's what the reason. As the charge on anion increases, as the charge increases means what happens? The size increases, attraction decreases, less energy is needed. That's why here the inverse relation. आ रहा समझ में? लास्ट पॉइंट क्या है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि p ऑर्बिटल से, ठीक है, आप लोगों को तो मालूम है ये अनस्टेबल है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल है, 3rd इलेक्ट्रॉन स्टेबल, क्योंकि पूरे के पूरे हाफ फील्ड है, तो क्या है स्टेबल है. तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना अपने को मुश्किल है मतलब वी नीड मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. अब ये क्या है? अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है. ठीक है, अब क्योंकि ये स्टेबल है, ये from here it is difficult to remove the electron. When we say it is difficult, means we need more energy to remove the electron. That's why here the ionization energy is high for this. Understood? Hope your doubts are answered. So I'm moving ahead. अब देखिए आप लोग थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं. एग्जाम्पल जो ना पहले कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बाद एग्जाम्पल आएगा.
यहां तक तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यहां तक अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। एग्जांपल मैं देने वाला हूं। मैं अब तक जो कुछ भी हम डिस्कस व्हाट एवर वी डिस्कस सो फार, डू यू अंडरस्टैंड दिस? जस्ट गिव मी द क्विक रिप्लाई, कम ऑन, गिव मी द क्विक रिप्लाई। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहां पर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आया तक आगे बढ़ेंगे अपन, क्योंकि शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप लोग ये पूरा। अब देखिए ये न्यूक्लियस है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, समझिए यहां पर पूरे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब समझो कि एक एटम है, न्यूट्रल एटम है, ये एक्स है जो कि न्यूट्रल है। अब आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें यहां पर, ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन्स एडेड है। समझो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हुआ। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, पहले एटम इतना ही था ना, सो पहले एटम इतना ही था, स्मॉल एटम। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस इंक्रीज हुआ ना, यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। जब डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो हम शुरू से क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा अट्रैक्शन कम होगा, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। तो जैसे अट्रैक्शन कम है तो हम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। आसानी से निकाल रहे हैं मतलब कम एनर्जी यूज करके बाहर निकाल रहे हैं। यू आर यूजिंग द लेस एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मीन्स हियर you are using the less energy, means ionization energy is less. When the ionization energy less or decreases, because here you added the electron, means it is the negative ion. From negative ion the energy required is less. Understood this? Quickly reply. फोर्थ पॉइंट, जो नो सर बोल रहे थे उनको समझ में आया नहीं? यस, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट नॉट अंडर, चलिए और कौन सी पॉइंट? इज एवरीथिंग इज क्लियर? नाउ वी आर गोइंग फॉर द एग्जांपल, विद द एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड इवन बेटर वे। ओके, वी आर गोइंग अहेड, लेट्स सी द एग्जांपल। ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए, और ये जो टॉपिक है आप लोगों को आईपी के लिए भी 8 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए 8 मार्क्स का आंसर है, और आईआईटी जेडबलई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए, नाउ लेट्स सी हाउ दिस आयोनाइजेशन एनर्जी चेंजेस इन द ग्रुप एंड पीरियड। So here group, whenever we say group, आप लोगों को जब कभी भी हम टर्म यूज करें ग्रुप, मतलब बाय डिफॉल्ट आप लोगों के जहन में आ जाना कि टॉप टू बॉटम, ग्रुप मीन टॉप टू बॉटम, पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट। चलिए, नाउ सो इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ionization energy decreases, because atomic radius increases, isn't it? क्योंकि ग्रुप में क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, लेट्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्बिट, here you are having the, let's say 2 orbits, here you are having the 3 orbits, here you are having the 4 orbits। मतलब ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा ना, पर ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। जब साइज इंक्रीज हो रहा, ठीक है, जब साइज इंक्रीज हो रहा तो अट्रैक्शन क्या होता, डिक्रीज होता। जब अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, वी नीड लेस एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यू नीड द लेस एनर्जी। आ रहा समझ में? That's why here, as the atomic radius increases, we need less energy to remove the electron, means ionization energy decreases. So in simple we can say ionization energy decreases because atomic radius increases. For example, if you take the first group elements, ठीक है,
if you take the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1 4s1 5s1, ठीक है, 6s1। आ रहा है समझ में? अब देखिए साइज बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन कम हो रहा, आपको एनर्जी कम चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। मतलब हियर for the cesium we need less energy than the rubidium, then potassium, then sodium, then lithium. So in this way the ionization energy decreases from top to bottom in the group. Now the most important part here, the most important part is the period. So in a period from left to right ionization energy increases. Period में क्या हो रहा है? ionization energy increase हो रही। क्यों increase हो रही? Because the atomic radius decreases, because the atomic radius decreases. For example, if you take the ionization energy, see here, ionization energy of second period elements we are taking, ionization energy of the second period elements. इसमें क्या हो रहा है देखो, अब सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब देखिए कॉन्सेंट्रेट मोस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, सो दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इन ए पीरियड, पीरियड मींस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ionization energy increases, you know, because atomic radius decreases. Atomic radius already we discussed in the last class. So here the ionization energy increases means it is the sequence we expect. यही sequence अपन expect करते हैं, yes or no? We expect this particular sequence. अब इसमें if you take the electronic configuration of beryllium, beryllium is 1s2 2s2, here it is the 1s2 2s1, it is the 1s2 2s2 2p1, 2p1 मतलब यहां पर p में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर s में 2 इलेक्ट्रॉन से, यहां पर s में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये स्टेबल है, ये और ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखिए यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड स्टेबल, कंप्लीटली फील्ड स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल, मतलब ये इससे ज्यादा स्टेबल है, मतलब बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा स्टेबल है, बेरिलियम इज मोर स्टेबल देन द बोरॉन। जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड 7 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें लास्ट फैक्टर 7th फैक्टर को मैं 3 जो स्टार दिया था वहां पर, I said half filled configuration or completely filled configuration is stable, that is having more ionization energy. मतलब बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा रहेंगी क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टेबल है। तो here it is the sequence will change like this, beryllium ionization energy is more than lithium and the boron. अब देखिए कार्बन का क्या है? 1s2 2s2 2p2, 2p2 मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से। नाइट्रोजन का 2p3 है, 2p3 मतलब यहां पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन का 2p4, 2p4 मतलब यहां पर सो 1 2 3 4, ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये भी लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन किसका है? नाइट्रोजन का है। मतलब हियर यू नीड मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मींस आयोनाइजेशन एनर्जी is more for nitrogen compared to the carbon and oxygen. Understood all of you? So it is the most important part we are discussing. Now the ionization energy is highest for the neon. सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी रहेंगे? जीरो ग्रुप एलिमेंट्स की। क्यों? कि वो लोग स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दे हैव द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ओके, दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल। अच्छा, अब यहां पर this is the ionization energy. Which ionization energy? Ionization energy 1. कौन सी ionization energy है? First ionization energy. मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अपने को ये सीक्वेंस रहेगा। अगर आप जो है ना, अगर if you are writing like the IE2 of second period, IE2 of second period elements तो सेम होंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगेन अब ये क्या है? सेकंड पीरियड बोल रहे हैं हम। जब पीरियड बोल रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती? इंक्रीज होती। तो इंक्रीज मतलब सीक्वेंस हम
एक्सपेक्ट ऐसा करेंगे, दिस इज द सीक्वेंस, वी एक्सपेक्ट दिस सीक्वेंस। आ रहा समझ में? लेकिन देखिए यहां पर अब हम क्या बोल रहे हैं, IE2 मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। IE2 मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ऑलरेडी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाए होंगे ना, हो दैट्स कंप्लीटेड ऑलरेडी। ऑलरेडी आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हैं, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद तो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे आप। अरे समझ में, जब हम कभी भी टर्म यूज कर रहे हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो समझ जाना कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हो गया वहां पर। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हुआ मतलब वन इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। आ रही बात समझ में? जब हम सेकंड आयनाइजेशन बोल रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है ऑलरेडी, ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स से वन इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है। मतलब क्या है यहाँ पर, इट मीन्स हियर लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन one electron is lost means all these have lost one electrons। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज नहीं भी दिए तो समझ जाना है यहाँ पर। so 2 electrons 3 electrons 4 5 6 like this, one electron is less because one electron is removed from all। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, only 2 electrons are there। आ रहा है समझ में? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसका कॉन्फ़िगरेशन है वो, हीलियम का। हीलियम is having the highest ionization energy in the periodic table। पूरे periodic table में हीलियम का हाईएस्ट रहेगा। क्यों हाईएस्ट रहेगा हीलियम का? 2 रीजन है। एक तो उसका साइज स्मॉल है, सेकंड उसका जो है ना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। दैट्स व्हाई हियर दिस इज हैविंग द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर 3 4 5 6 7 8, यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सो हियर वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अब यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड, मींस बोरॉन इज हैविंग मोर आयोनाइजेशन एनर्जी हियर। यहाँ पर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, मींस हियर दिस वन इज हैविंग द मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन फ्लोरीन एंड नियॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। lithium and beryllium, if you compare, in the beryllium we have the paired electrons। आप लोगों को क्या याद रखना है, अगर जो ना हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड है, जैसे कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। वैसे जो ना फॉर एग्जांपल ये हाफ फील्ड है और ये कंप्लीटली फील्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, उसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रहेंगे, लाइक दैट मोर स्टेबल। ठीक है, take the screenshot or copy it very quickly, we'll go ahead। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर the last point here, or else here you can say ionization energy is endothermic process। एंडोधर्मिक, एंडोधर्मिक मतलब
एंडो मतलब इनसाइड, तो मतलब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी यूज कर रहे हैं। जहां कहीं भी एनर्जी यूज होंगी हम वो रिएक्शन को बोलेंगे एंडोधर्मिक रिएक्शन। आ रहा समझ में? सो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्योंकि हम एनर्जी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एंडोधर्मिक process, most important point. Okay, now after this let's see the next. The next periodic property is the electron affinity. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम EA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या चीज है? Here the electron affinity is opposite to the ionization energy. It is opposite to the ionization energy. Ionization energy में हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे, isn't it? So we were removing the electron in case of ionization energy. अब उसका अपोजिट मतलब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? Here the electron affinity is nothing but, let's say it is the nucleus and these are the different orbits. अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? You are adding the electron. When you add the electron to the neutral isolate gaseous atom, then the energy is released. The energy which is released is known as electron affinity. So जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होंगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन affinity. So how you can define this one? So it is the energy released. It is the energy released when electron is added, when electron is added to neutral isolated gaseous atom. It is the energy released when electron is added to neutral isolated gaseous atom, isn't it? When you added the electron, energy is released. This energy is known as electron affinity. अच्छा, तो अब इसका यूनिट्स क्या है? यूनिट्स जो आयोनाइजेशन एनर्जी के थे वही सेम यूनिट्स है यहाँ पर, दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, या फिर जो ना किलो कैलोरीज पर मोल, या फिर जो ना किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है? सो these are the units, kilo calories per mole or kilo joules per mole. Okay, now let's say x is the, x क्या है यहाँ पर देखिए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये एक न्यूट्रल गैसियस एटम है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर? इट बिकम्स x माइनस, x बिकम्स x माइनस, isn't it? So here from this some energy is released, isn't it? जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, when you're adding the electron, energy is released. So energy is released with the product. तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही, हम इसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें यहाँ पर, यू एडेड वन इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाट इज द EA1। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? डेल्टा H। डेल्टा क्या है? चेंज। H का मतलब होता है एंथैल्पी। H क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज मतलब एनर्जी चेंज। सिंपल टर्म्स में एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज क्या हुआ यहाँ पर? एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पर। रिलीज हुई तो क्या बोलेंगे हम? एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर डेल्टा H का साइन क्या है? नेगेटिव। डेल्टा H का साइन क्या है? नेगेटिव।
ठीक है, जहां कहीं भी ये न्यू टर्म से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच जहां कहीं भी नेगेटिव आया तो समझ जाना कि वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, मतलब उस पर्टिकुलर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, सो डेल्टा एच इज नेगेटिव। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो x माइनस फॉर्म हुआ हम इसको दोबारा ले रहे हैं। सो हियर वी आर टेकिंग द x माइनस g, to this we are adding another electron. Then what happens here, here to this you are adding another negative charge, so minus becomes -2, so you get the x -2। ठीक है, गैसियस। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर क्या हो रहा, डेल्टा एच नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। और ये क्या है, ये एंडोथर्मिक है। मतलब क्या है यहाँ पर, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सो हियर if you take the second electron affinity, that is the endothermic, we can say the EA1 first electron affinity is exothermic, it is the EA2, or else we can say the EA2. So the EA2 is nothing but positive, which is nothing but the endothermic। आ रहा समझ में आप लोगों को, क्यों एंडोधर्मिक है, क्योंकि अब देखिए यहां पर आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये EA1 हो गया, जो एनर्जी रिलीज हुई। कॉन्सेंट्रेट करिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, यहां पर EA1, यहां पर EA1 ये क्या है, नेगेटिव, मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक है ये। सो यहां पर EA1 क्या है, एक्सोथर्मिक। अब आप क्या कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं यहां पर, यू आर एडिंग अनदर इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया आप। व्हेन यू एडेड 1 इलेक्ट्रॉन, व्हाट हैपेंस हियर, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर मोर, कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्जेस कितने हो गए, ज्यादा हो गए। तो जब नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, तो आप जब और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज रिपेल्स द नेगेटिव चार्ज। देखिए यहां पर, यहां ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट हियर, नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन यू एडेड, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जा रहा क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं। अब इसको जब आप और एक नेगेटिव ऐड करेंगे तो नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव, नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव, तो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स अंदर है वो जो हम और एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं आने नहीं देते, बिकॉज यू नो द लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, नॉर्थ रिपेल्स नॉर्थ, साउथ रिपेल्स नॉर्थ साउथ, इन द सेम वे नेगेटिव रिपेल्स द नेगेटिव। तो यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते वो लोग। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जबरदस्ती की जब आप ऐड करेंगे तो कुछ एनर्जी यूज करेंगे, आप एनर्जी यूज करेंगे ना, क्योंकि ये आने नहीं दे रहे, मतलब रिपेल कर रहे हैं, तो you have to use more energy to the add electron. So you are using energy to add the second electron. The second electron affinity is the endothermic। आ रहा समझ में, second electron affinity is the endothermic। To add the second electron you are using energy, because the incoming electron, the electrons which are already present, they repel the incoming electrons. To overcome those repulsions you are using the energy, that's why here the second electron affinity is the endothermic। most important part we completed, still we have more points to discuss। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वी आर नॉट यूजिंग द एनर्जी, सिंपली हम ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि वहां पर अपने को रिपल्शंस नहीं थे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपने को रिपल्शंस नहीं थे, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं अपन, तो वो जो पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब पहले से जो नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है, तो वो रिपेल करेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन को। तो आप वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो जब जाके वो एंडोधर्मिक हो रहा।
ओके मैं इसको सेम टॉपिक को थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखिए, समझो कि एक एलिमेंट में 8 प्रोटॉन्स है और 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको जो ना आप और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं आप, जब आप और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा यहां से? सो इट विल चेंज। So from this to this, when you add one electron, to this when you add one electron, we have the 8 protons and 9 electrons. यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों को? 8 protons 8 electrons है एक एलिमेंट में। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो 8 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, ठीक है, कंपैरेटिव। अब मैं इसको, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैं कैसा लिख रहा हूं? इसको जो ना 8 electrons plus 1 electron, can you write like this, where you added 1 electron, so 8 plus 1 9, so 8 plus 1 9। प्रोटॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव, सो 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, सो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, समझो आप। तो कंपैरेटिवली 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर। अब इसको जब आप 1 मोर इलेक्ट्रॉन, ये यहां तक क्या हुआ? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ ना, ये क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई यहाँ पर, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें। अब इसको आप और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। जब आप इसको सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यहाँ पर, सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव 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 को रिपेल करेंगे ना वहां पर, नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको ऐड करना है, ऐड करना है मतलब ये रिपल्शंस को ओवरकम करना है, ठीक है। तो यू हैव टू यूज सम एनर्जी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप यहाँ पर एनर्जी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, बिकॉज ऑफ रिपल्शंस। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफिनिटी क्या हो गई? एंडोधर्मिक हुई। वही कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर रहे थे अभी तक, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स सी हाउ दिस इलेक्ट्रॉन affinity changes in the group and period. Sorry. The next one here, let's see in the group. In a group from top to bottom, electron affinity decreases because atomic radius increases, ठीक है। अब ये एक स्मॉल एटम है, ठीक है, ये एक जो है ना लार्ज एटम है, ठीक है। स्मॉल एटम, स्मॉल एटम मतलब डिस्टेंस इज लेस, डिस्टेंस इज लेस मींस अट्रैक्शन इज मोर। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो ये रेडीली एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन फौरी ले लेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है इसका, so it readily accepts the electron. Then in that case what happens? More energy is released, so electron affinity is more here. यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस इज मोर मींस अट्रैक्शन इज लेस, अट्रैक्शन इज लेस मींस ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स को ही अट्रैक्ट नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि साइज इज मोर, अट्रैक्शन इज लेस, इट इज अनेबल टू अट्रैक्ट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। जब आप बाहर से इलेक्ट्रॉन देंगे तो कहां से लेंगे वो? मतलब लेंगा लेकिन with difficulty, so less energy is released. So here when you add the electron here, here also energy is released, but this energy which is released known as electron affinity, the energy will be less, ठीक है। तो मतलब क्या है? अगर लार्ज साइज रहा तो लेस एनर्जी रिलीज हो रही, लेस साइज रहा तो मोर एनर्जी रिलीज हो रही।
तो वही तो बोल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। रिलेशन क्या हुआ? इनवर्स रिलेशन हुआ। अब देखो, सो हियर फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 4a 4a group, 5a group, 6a group and 7a group elements, ठीक है। So here if you take the 4a group elements, carbon, silicon, germanium, tin and lead. 5a group elements, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. 6a group elements, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, ठीक है। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये एलिमेंट्स है ना। ये लोग कौन है? एक ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती? डिक्रीज होती। डिक्रीज हुई मतलब सीक्वेंस हम जनरली ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज द सीक्वेंस वी एक्सपेक्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, देखो ये समझना है आप लोगों को। जब हम ग्रुप बोल रहे हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता ना, ठीक है, साइज इंक्रीजेस। यहाँ पर ये स्मॉल एटम है, स्मॉल एटम है। जब स्मॉल एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा करीब रहेंगे एक दूसरे के। बात समझ आ रही? जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। अगर हम 4a ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स में यहां से लेके वहां तक सब में सिर्फ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जब हम 5a ग्रुप बोल रहे हैं तो यहां से लेके वहां तक सबके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर पूरे में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब आप कौन सा भी ग्रुप ले लो, फॉर एग्जांपल समझो कि ये 4a ग्रुप है, तो मतलब क्या पूरों के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है बोल रहे हैं हम यहाँ पर, ये क्योंकि स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा करीब रहेंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ते जा रहा तो इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दूर रहेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर अवे फ्रॉम द ईच अदर, तो रिपल्शंस कम रहेंगे यहाँ पर। यहाँ हियर क्योंकि साइज इज लेस, रिपल्शन इज मोर। मतलब क्या है, जब स्मॉल एटम को जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर थोड़े से रिपल्शंस रहेंगे, थोड़े रिपल्शंस। Why repulsions? Because of small size, the electrons are close to each other, so that repels the incoming electron. In that case, you need to use some energy to add the electron. अरे समझ में? तो मतलब जो नेट एनर्जी रिलीज होती, जो नेट एनर्जी रिलीज होंगी, that net energy release will be less. The net energy which is released will be less. So that's what the reason. यहाँ पर एनर्जी, ये जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स है ना, यहाँ पर ये एलिमेंट्स कौन है? रेस्पेक्टिव ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पर लेस एनर्जी रिलीज हो रही, नेट एनर्जी रिलीज इज लेस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पर, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो सीक्वेंस कैसा रहेगा यहाँ पर? ये द सीक्वेंस विल बी, हियर इज द सिलिकॉन, हियर इज द कार्बन, here is the phosphorus, here is the nitrogen, here is the sulfur, here is the oxygen, here is the chlorine, and here is the fluorine. ठीक है? So here the sequence changes here. Understood all of you? So here the sequence changes because here to the small atom, when you add the electron, the net energy released is less. Okay, so it is the sequence which is important. मतलब क्या है? जनरल ट्रेंड तो डिक्रीज होगा, लेकिन जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है उसकी एनर्जी सेकंड से ज्यादा रहेंगी। So now you can see chlorine. So here the most important point I'm writing here, Cl is the element, Cl is the element with highest electron affinity. Cl is the element with highest electron affinity in the periodic table. पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी रहेंगी? क्लोरीन की रहेंगी। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना अपने को, सबसे ज्यादा क्लोरीन की रहेंगे। अच्छा, ये किसमें है? ये ग्रुप में है। इफ यू टेक द पीरियड, इन ए पीरियड
from left to right, electron affinity increases because atomic radius decreases. अब आप कौन सा भी पीरियड ले सकते हैं. For example, if you take the second period, lithium, beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. नियॉन को नहीं ले रहे हैं अपन. क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि नियॉन स्टेबल है. नियॉन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेंगे, isn't it? So it increases. So you can say for zero group, electron affinity is zero. क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेंगे. जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होंगी. जब एनर्जी रिलीज नहीं हो रही तो जीरो एनर्जी इज रिलीज. जीरो एनर्जी इज रिलीज मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो. ठीक है. तो जहां कहीं भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, देयर एनर्जी रिलीज इज लेस और जीरो. अच्छा, थोड़ा सा स्पेसिफाई करिए कि जो है ना कौन सा क्या एक्सप्लेन चाहिए सर. पीरियड फॉर एग्जाम्पल, अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल 4A ग्रुप ले लिए तो 4A ग्रुप एलिमेंट्स कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, यही है ना. सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. ठीक है. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये पूरों का? ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP2 ये है ना कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. साइज कैसा हो रहा है यहाँ पर? साइज इंक्रीज होते जा रहा है यहाँ पर. ठीक है. साइज इंक्रीज होते जा रहा. तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन से थोड़ा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो ना करीब है यहाँ पर, ये क्या डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है यहाँ पर. ठीक है. डिस्टेंस बढ़ते जा रहा. ठीक है. जब इलेक्ट्रॉन्स जब डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्शंस, क्योंकि नेगेटिव रिपल्सन नेगेटिव, तो यहाँ पर रिपल्शंस कम रहेंगे, यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा रहेंगे. तो जब आप इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये नेगेटिव को, ये जो नेगेटिव है ये रिपल करेंगे. तो जब आप थोड़ी सी एनर्जी यूज करेंगे यहाँ पर, जब आप एनर्जी यूज कर रहेंगे तो जो नेट एनर्जी रिलीज होंगी इससे कम रहेंगे. तो उसी वजह से हम सिलिकॉन को जो ना फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, सिलिकॉन को जो ना ज्यादा दे रहे हैं, बाद में कार्बन, क्योंकि अपन कार्बन में थोड़ी एनर्जी ज्यादा यूज कर रहे हैं. उसके बाद जो ना जर्मेनियम. ठीक है. उसके बाद जो ना टिन. उसके बाद जो ना लेड. सेम कॉन्सेप्ट हम पूर्ण के लिए यूज कर रहे हैं, अपन सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम सबके लिए. आ रहा है समझ में? अच्छा ठीक है. फिर लास्ट में हम क्या बोल रहे हैं? पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही, लेकिन जीरो ग्रुप का जीरो. क्यों जीरो? क्योंकि ऑलरेडी वो लोग स्टेबल है. जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें भी तो वो लोग नहीं लेंगे क्योंकि स्टेबल है. जब वो लोग नहीं ले रहे हैं तो मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होंगे. एनर्जी रिलीज नहीं होंगी मतलब जीरो एनर्जी रिलीज हो रही. So the zero energy is released means electron affinity is zero for the zero group elements. That's for the 18th group or inert gases. ठीक है. Okay, hope you understood the class. So practice well. All the best for the Monday's test. Okay. Electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. कौन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. यहां पर लिख रहा हूं मैं यहां पर. कैन यू सी दिस इफ आई राइट हियर? नो. ओके, आई राइट हियर. If you take the EA1 first electron affinities exo मतलब माइनस. ठीक है. EA2 second electron affinities endo मतलब प्लस. फर्स्ट में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही. ठीक है. क्योंकि ऑलरेडी वन इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हैं आप फर्स्ट में. जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वो नेगेटिव चार्जेस वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड आने नहीं देंगे वो. तो आप जो ना जब ऐड करना चाह रहे हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को तो वहां पर आप एनर्जी यूज करेंगे. आ रहा समझ में? यहाँ पर और एक अलग तरीके से बोले तो ठीक है, यही पॉइंट मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल समझो कि जो ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे एलिमेंट है. ठीक है. तो सबसे अब जनरल अपन क्या बोल रहे हैं? स्मॉल की जो ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहती. अच्छा ठीक है. समझो कि जो ना यहाँ पर 10 है. ठीक है. यहाँ पर 8 है.
यहाँ पर 7, यहाँ पर जो है 6 और यहाँ पर 4 सम यूनिट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हुई समझो, क्योंकि ये स्मॉल साइज है, ये लार्ज साइज, ये इवन मोर एंड दिस इज इवन मोर इन साइज। ठीक है, स्मॉल आइटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है समझो फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब क्योंकि ये स्मॉल है, रिपल्शंस रहेंगे, तो आपको थोड़ी एनर्जी यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। जब एनर्जी यूज कर रहे हैं आप, ये क्या माइनस है ना, ये एक्सोधर्मिक है, माइनस, एक्सो मतलब माइनस है ना यहाँ पर। अच्छा, मतलब ये -10 क्या बता रहा है, एनर्जी रिलीज हुई कितनी, 10। अब फॉर एग्जांपल क्योंकि रिपल्शन से, रिपल्शन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन, आपको यू हैव टू यूज द एनर्जी। अब समझो कि जनाब 3 एनर्जी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस मतलब एंडो, माइनस मतलब एक्सो, तो रिजल्टेंट एनर्जी क्या हुई यहाँ पर, -7 हुई। जब -7 बोले तो -7 यहाँ पर आएगा ना, आ रही बात समझ में, क्योंकि एटम स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन्स करीब है। ठीक है, तो रिपल्शन रहने की वजह से आप एनर्जी यूज कर रहे हैं, कितना सब, फॉर एग्जांपल 3 यूनिट्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं यहाँ पर इंडो। ठीक है, जब आप एनर्जी यूज कर रहे हैं तो नेट एनर्जी कितना हुआ यहाँ पर, -10 + 3 कितना हुआ, -7। -7 जब बोल रहे हैं तो -7, -8 और -6 के बीच में आ जाएगा। तो फ्लोरीन कहां पर आ जाएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में आया था ना वहां पर, तो वही तो लिखे अपन, क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में फ्लोरीन, वही सीक्वेंस आ रहा है यहाँ पर। सेम कॉन्सेप्ट पूरे के लिए अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। I hope this time you understood even in the better way. Okay. Understood all of you? Okay. In the next class, we'll begin with the, sir, what is repulsion? अब repulsion क्या है बोल तो, मैग्नेट्स समझो के, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल करीब लाए तो क्या होता, अट्रैक्ट होते, वो रिपेल होते ना, एक दूसरे से दूर जाते हैं ना, दूर जाने को रिपल्शन बोलते हैं, करीब आने को अट्रैक्शन। ठीक है, अब समझो कि अब ये नॉर्थ और ये नॉर्थ रिपल्स, या ये साउथ रिपल्स, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट्स। वैसे जैसे नॉर्थ नॉर्थ रिपेल हो रहा, या समझो कि जो ना ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, नेगेटिव के करीब जब नेगेटिव लाएंगे तो रिपल होता ना, सेम चार्जेस रिपल करेंगे इसको। दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। वी आर कंक्लूडिंग द सेशन हियर। क्लोज कर दीजिए सर।